we are going to discuss about electromotive force. The flow of electric current in a circuit is analogous to the flow of water. EMF को समझने के लिए पहले हम वाटर के फ्लो को समझेंगे. As you can see, there are two tanks. One is upper tank and another is lower tank. The water will come from upper tank to lower tank spontaneously. As you know, the water flows from higher pressure to lower pressure, but to supply water from lower tank to upper tank, a water pump is required. Water pump will do some work so that water can flow from lower tank to upper tank. जिस तरीके से वाटर पंप वाटर को लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर तक पहुंचाएगा, उसी तरीके से सेल का ईएमएफ चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाने का वर्क डन करेगा. जिस तरीके से वाटर पंप का काम था वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल तक पहुंचाने के लिए, उसी तरीके से सेल का ईएमएफ चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए बैटरी का ईएमएफ काम करेगा. किसी भी सोर्स, सेल या बैटरी का ईएमएफ will provide work done to provide positive charge from lower potential to higher potential. किसी भी सेल का EMF will provide work done to move positive charge from lower potential to higher potential. So how will you define EMF? EMF of source may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower potential to higher potential. किसी भी सोर्स, सेल या बैटरी का EMF is equal to the work done to move charge from lower potential to higher potential. So EMF is the work done by the source to move unit positive charge from lower potential to higher potential. कैसे define करोगे EMF of the source को? The work done by the source to move a unit charge from lower potential to higher potential. So EMF is equal to the work done upon charge. What is the formula of EMF? EMF is equals to the work done upon charge. And what will be the unit? The unit of EMF will be the volt or joule per coulomb. So EMF equals to work done upon charge and its unit is volt. And how will you define the 1 volt? When 1 joule work done by the source to maintain or to move a 1 coulomb charge from lower potential to higher potential, then EMF is said to be 1 volt. 1 volt कैसे define करोगे? When 1 joule energy is supplied by the source to move 1 coulomb charge from lower potential to higher potential, then EMF is said to be 1 volt. अगर किसी बैटरी या सेल के द्वारा 1 joule energy is supplied to move 1 coulomb charge from lower potential to higher potential, then EMF is 1 volt. Take care about this thing that EMF is not a force. Okay, electromotive force is not a force. It is the special case of potential difference. आपको इस बात का ध्यान रखना है. EMF is not a force. It is the special case of potential difference. Now I'm going to explain the differences between potential difference and EMF. EMF is the work done by a source in taking a unit charge once around the complete circuit. What is EMF? It is the work done by the source in taking a unit charge once around the complete circuit. So EMF is the work done by a source in taking a unit charge once around the complete circuit. पूरे complete circuit में चार्ज को मूव करने के लिए जितना भी वर्क डन होगा that is equal to EMF. Potential difference, it is the amount of the work done in taking a unit charge from one point to another point. EMF में 1 complete round आ जाएगा, potential difference में 1 point to another point आ जाएगा. EMF, it is equal to the maximum potential difference between the two terminals of a source when it is an open circuit. ओपन सर्किट कंडीशन में सोर्स के जो दोनों टर्मिनल में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू EMF. ओपन सर्किट में सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं वहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज सर्किट. पोटेंशियल डिफरेंस कब एग्जिस्ट करेगा? जब सर्किट क्लोज होगा. पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन सर्किट इज क्लोज. तो क्लोज सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज सर्किट. EMF, it exists even when the circuit is not closed. EMF जब सर्किट क्लोज होगा तब भी होगा, जब ओपन होगा तब भी होगा. बट इन पोटेंशियल डिफरेंस इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज. पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब सर्किट क्लोज है,
क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड. EMF, it has non-electrostatic origin. Potential difference, it originates from the electrostatic field set up by the charges accumulate on the two terminal of the source. जब किसी सोर्स के दो टर्मिनल के बीच में चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. बट EMF इट हैज़ नो इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, उसमें ऐसा नहीं है. पोटेंशियल डिफरेंस कब प्रोड्यूस होगा? जब दो टर्मिनल्स के बीच में चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट पॉइंट, EMF इट इज़ अ कॉज. EMF की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तो वी कैन से EMF इज़ अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ एन इफेक्ट. क्या बोलेंगे हम? EMF इट इज़ अ कॉज जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है. सो EMF इज़ अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ एन इफेक्ट. EMF सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन पोटेंशियल डिफरेंस का सम करेंगे. सो विल गेट EMF. EMF फाइंड करने के लिए जितने भी सर्किट के अंदर कंपोनेंट है उन सभी के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देंगे. पोटेंशियल डिफरेंस, एवरी सर्किट कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होंगे सबका अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इट्स एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम. EMF इट इज़ लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट. EMF हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा बिकॉज EMF इज़ अ कॉज जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है. तो हम EMF सप्लाई करेंगे एंड विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द EMF. EMF इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. EMF किस पे डिपेंड करेगा? सेल पे डिपेंड करेगा, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे. बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. ठीक है. सो EMF इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. EMF किसका होगा? सोर्स का होगा. अब वो जिस सर्किट से कनेक्ट है EMF डज नॉट डिपेंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. उस सर्किट पे कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो EMF डज नॉट डिपेंड ऑन देम. बट पोटेंशियल डिफरेंस इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. एज यू नो V इक्वल्स टू IR. तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. EMF सर्किट के R पे डिपेंड नहीं करेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा.